हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो एज द चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं। लाइट के बारे में एक बेसिक आइडिया हम सभी को है, छोटे से क्लासेस में से है कि हम विजिबिलिटी की जो आइडिया है वो सबसे पहले हम कोई चीज़ बोलते हैं कि अगर कुछ विजिबल है तो उसके लिए लाइट को हम लोग रिस्पॉन्सिबल बताते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी। लाइट के भी और भी फिनोमिना हमें नेचर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेनबो, नाइट स्काई में जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं वो, मिरर में जो हमारी इमेजेस हमको नज़र आती हैं वो, हम सब जानते हैं। इसके एक रीज़न है लाइट। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लास 9th में हम लोगों ने वेव के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ऑसिलेशन, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रॉन्स जब ऑसिलेट करते हैं लाइट की थ्रू, तो उसमें जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। सो इसका नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है। अब लाइट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, छोटी सी क्लिप है जिसके हम बेसिक आइडिया से तो हम सभी वाकिफ़ है, लेकिन उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस क्लिप को देखेंगे। सो लेट्स सी। Light is a strange thing. It isn't just what we can see. Light can be broken up into different types, and we call the whole family the electromagnetic spectrum. So even when it's dark, light is still all around us. Light can be created by making an electron oscillate. This creates an oscillating magnetic field and an oscillating electric field, which we call an electromagnetic wave or light. We often represent light as a wave. Just like water waves, light has a wavelength, a frequency, and a speed. The different colours of optical light have different wavelengths, and so does the rest of the electromagnetic spectrum. Gamma rays are the most energetic, whereas radio waves have the least energy. Even so, light is the fastest thing in the universe. In a vacuum, all light waves, even radio waves, travel at an incredible speed of 300 million metres per second. The Royal Observatory is overrun with squirrels. They're hard to miss during the day because they reflect visible light from the sun, but at night it's more difficult. However, they do emit infrared light, and if our eyes could detect it, we would be able to see them in the dark. If we pass high-energy X-rays through them, the squirrels look very different. Humankind has invented lots of different instruments to show us what our eyes can't see, like our Great Equatorial Telescope, which captures huge amounts of light and allows us to see objects that are tens of millions of trillions of kilometres away. We can see matter interact with light and change it. The gases in the Earth's atmosphere scatter blue wavelengths of sunlight, giving us blue skies during the day and red skies at sunrise and sunset. We can watch sunlight reflect off planets and the moon. During a lunar eclipse, red sunlight changes direction as it passes through the Earth's atmosphere and reaches the moon. And although visible light from stars can be absorbed by dust in space, we can detect the infrared light, which gets through to see baby stars hiding in nebulae. Light can even appear to stretch out. Since our universe is expanding and galaxies are moving away from each other, the light they emit is stretched to longer wavelengths. We call this redshift. Some galaxies are... तो ये एक लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को दोबारा से रिवाइज करने के लिए एक छोटी सी क्लिप थी। इसके बाद हम कमिंग टू द एनसीईआरटी हम आगे बढ़ते हैं। लाइट की एक बहुत जनरल सा रूल है जो हम सभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। लाइट हमेशा एज जनरल पार्टिकल नेचर अपना शो करते हुए स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दैट्स रिटन इन एनसीईआरटी। बट लाइट का एक और नेचर ऑब्जर्व किया गया है जो बहुत पहले से ऑब्जर्व किया गया था, और इसके नेचर को डिटरमाइन करने के लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। लाइट डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। नाउ व्हाट इज डिफ्रैक्शन? इफ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट कम्स बिकम वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तो नहीं, बट एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं और उसमें अगर वो ऑब्जेक्ट ऑपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट स्ट्रेट लाइन फॉलो, या तो आप जनरल जानते हैं कि किसी भी चीज़ से अगर कोई लाइट अगर टकरा रही है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वहाँ से, और या फिर अगर मीडियम अगर कोई ऐसा है तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। बट बेंडिंग का
फिनोमिना भी ऑब्जर्व किया गया है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के केसेस में। तो जहाँ पे वो बेंडिंग हो जाती है और तो वहाँ पे लाइट का स्ट्रेट पाथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ पे कर्व पाथ फॉलो हो जाता है लाइट का, और वो उसकी वेव नेचर को भी डिस्क्राइब करता है। और ये जो फिनोमिना है बेंडिंग ऑफ लाइट का, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी जो क्लासिकल फिजिक्स थी अभी तक की, वो लाइट के इस वेव नेचर को डिफाइन नहीं कर पा रही थी, और कुछ जो ऐसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी थे जिसमें पार्टिकल नेचर को भी ऑब्जर्व किया गया। तो ये दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग थे कि वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, तो दोनों को साथ में कैसे स्टडी किया जाए। तो उसके लिए क्लासिकल फिजिक्स इनफ नहीं थी। नाउ अभी एक नया मॉडर्न फिजिक्स में उसको क्वांटम थ्योरी के अंडर इसको स्टडी किया गया है, और लाइट के पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है क्वांटम थ्योरी के अंदर। अब लाइट के अलग अलग फिनोमिना को स्टडी करने के लिए कि कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए हमें लाइट की प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ना ज़रूरी है कि अब लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो ऐसा फिनोमिना शो करता है, कभी ऐसे बिहेव कर रहा है, कभी इस वे में बिहेव कर रहा है। उसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो रिफ्लेक्शन पहली प्रॉपर्टी है लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक जनरल केस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग मिरर के केस में जानते हैं कि मिरर रिफ्लेक्ट करता है। मिरर ही नहीं, कोई भी स्मूथ सरफेस, प्लेन पॉलिश सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिश सरफेस, एक रेगुलर पॉलिश सरफेस जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अभी हमने छोटे क्लासेस में दो रिफ्लेक्शन के दो रूल्स भी पढ़े हैं। फर्स्ट रूल यहाँ पे लिखा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक प्लेन दिया जाता है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और जो रे आती है उस परपेंडिकुलर से उस रे, अपकमिंग रे के बीच में जो कन्वर्जन होता है, जो उसका रे के बीच में जो बेंडिंग होती है, वो जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इंसिडेंस के बाद जब वो प्लेन, जो सरफेस के प्लेन से लाइट जब टकराएगी तो वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट भी होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये फर्स्ट लॉ है उसका, रिफ्लेक्शन का। सेकेंड लॉ हम लोग जानते हैं इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। जो हमने नॉर्मल ड्रा किया था वो, जो इंसिडेंट रे आ रही है वो, और जो रिफ्लेक्टिंग रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। काफ़ी कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, और ये रूल्स होते हैं दो रिफ्लेक्शन के। अब इसके बाद हम लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज। जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, लाइट की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है कैसी होगी, वो इरेक्ट होगी, आइदर इज वर्चुअल है या रियल है इमेज। रियल इमेज के इनका एग्जांपल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जो हम लोग प्रोजेक्टर से जो इमेजेस फॉर्म होती है स्क्रीन पे, वो रियल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज जो इमेज में हम लोग मिरर में देखते हैं वो इमेज वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल और रियल इमेज है, या फिर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो रखा गया है मिरर के सामने, क्या वो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो उस ऑब्जेक्ट से छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्टिंग में बड़ी है वो, या फिर सेम साइज की है। ये सब उसके इमेज की जो है प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या कैसी इमेज फॉर्म हो रही है। वो सब पढ़ने के लिए हम लोगों को इस चैप्टर को आगे स्टडी करना होगा और उस जानेंगे। इसके बाद एक काफ़ी कॉमन सा ऑब्जर्वेशन, आप लोगों के घर में स्पून होगा। स्पून में दोनों साइड प्लेन होता है। अगर वो नया स्पून है तो वो दोनों साइड पॉलिश होंगी, स्मूथ होंगी, और दोनों में हम लोग अपनी कुछ इमेजेस फॉर्म होते हुए देखते हैं। कहीं भी किचन में रखा रहता है तो उस पर कुछ न कुछ इमेज फॉर्म होती है। दीवार के सामने रखा है तो दीवार की या कुछ की भी इमेज फॉर्म होती है। तो उसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी करने को दिया है, इसको आप करिएगा और ऑब्जर्व करिएगा आपको क्या दिखाई देता है। इसमें इसका रिजल्ट क्या आएगा, द कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर, शाइनिंग स्पून का जो है वो कर्व सरफेस, स्पून आप कर्व सरफेस जो होगा उसको कर्व मिरर, या फिर उसको उसी को स्फेरिकल मिरर की तरह भी कंसीडर किया। स्फेरिकल मिरर क्या है कि एक स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे कोई भी एक टोटल स्फेयर है, एक पूरा का पूरा स्फेयर है, उसके एक पार्ट को हम कट करेंगे तो उससे स्फेरिकल मिरर फॉर्म होगा एक, और उसका जो सेंटर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और आगे। स्फेरिकल मिरर्स के लिए उसके बारे में कुछ आगे आइडियाज़ दिए गए हैं। उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में भी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो सकती है या आउटवर्ड। स्पून में दो सरफेसेस होती हैं। इनवर्ड जो अंदर की तरफ जो बल्ज रहेगी वो सरफेस एक होगी, और एक उसको उल्टा करेंगे स्पून को तो बाहर की तरफ एक बल्ज सरफेस दिखाई देगी। दो सरफेसेस होती हैं। अब उनको हम इन्हीं दो सरफेसेस के बेसिस पे दो तरह के मिरर भी फॉर्म होते हैं। दो तरह के मिरर भी होते हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।
यहाँ पे एनसीईआरटी में उसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है। कनकेव मिरर के बारे में हम जानेंगे कि कनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ जो बल्स होता है और बाहर वाली लेयर उसकी पॉलिश्ड होती है। ये बाहर वाली लेयर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिश्ड है, ये होता है कनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आपको एक बार में अपने माइंड में क्लियर करके याद रखना होगा कि क्या कनकेव है क्या कन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या होता है, स्पून की जो बाहरी सरफेस होगी या फिर मिरर की जो बाहरी सरफेस होगी और अंदर की तरफ पॉलिश्ड होगा और बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस याद रखिए एक तरह से कि कनकेव की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली लेयर होती है और कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर वाली लेयर होती है। उसके बाद आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ के जानने के बाद ही हम आगे मिरर के बारे में और कुछ पढ़ पाएंगे। पहली टर्मिनोलॉजी है पोल। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, सेंटर उसका स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, यहाँ पे बीच में एक सेंटर होगा, फॉर्म होगा, उस सेंटर को, ये जो यहाँ पे सेंटर है इसको हम लोग पोल कहते हैं और ये लेटर पी, कैपिटल लेटर पी से डिनोट किया जाता है वो सेंटर। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि स्फेरिकल मिरर किसी एक पूरे स्फेयर का पार्ट होगा, तो उस पूरे स्फेयर में एक सेंटर तो होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो मिरर के आउटसाइड लाई करता है। एक आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने पूरा स्फेयर लिया, उसके पार्ट को कट कर लिया, अब आप उस पार्ट को अलग रखिए और अपने दिमाग में ही उस पार्ट से एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और उसके सेंटर पे जाइए, वो सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। ऑलरेडी आपको पता है जब मिरर आप उसका स्फेरिकल मिरर को कट आउट कर लेंगे उसमें से, तो सेंटर उसके उस मिरर में आपको नहीं दिखाई देगा कहीं, उस मिरर में कोई पॉइंट आप बता दें ऐसा जो कि उसका सेंटर है, वो उसके बाहर ही रहेगा। थर्ड टर्मिनोलॉजी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने स्फेयर, सर्कल, ये सब सारे जो चीज़ें हैं ये पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको सेंटर के बाद अब रेडियस का आइडिया लग ही गया होगा कि सेंटर ही जो होगा वहाँ से पोल से सेंटर तक की दूरी उसकी रेडियस होगी और उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसको कैपिटल लेटर आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। आप पोल लीजिए, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट पे अब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, या अंदर और बाहर दोनों तरफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उस एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे और आगे जब हम रे डायग्राम और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हम लोग वो सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम्स में। सेकेंड एनसीईआरटी में सेकेंड एक्टिविटी में काफ़ी कॉमन सी एक्टिविटी है, हम लोगों ने अपने बड़े भाई के डायसेक्शन बॉक्स की, कोई मेडिकल स्टूडेंट या ऐसा कोई रहा होगा अगर हाथ लगा होगा, तो लेंस लेके हम लोग बचपन में खेला करते थे कि उसके एक पेपर रखा, सनलाइट में गए, पेपर रखा, पेपर को लेंस से कुछ हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं सनलाइट को, और जब सनलाइट का लेंस से जो रे आती है वो एक पॉइंट जितनी हो जाती है तो और थोड़ी देर फोकस करते हैं हम उस पेपर पे तो पेपर बर्न आउट कर जाता है, जल जाता है वो पेपर उतनी दूर, और उससे हम नाम वगैरह या जो भी खेलते रहे होंगे हम लोग ऐसा करते थे। तो वो क्यों होता है, तो वो क्यों होता है ये फिनोमिना, तो आपको समझ में आएगा कि सारी जो लाइट आती है बाहर से, सनलाइट जो आती है वो एक जगह पे फोकस हो जाती है, और इससे हमको अपने नेक्स्ट टर्म का टर्मिनोलॉजी का आइडिया होगा फोकस। फोकस क्या होता है, वो पॉइंट होता है जो जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, वो सन की इमेज होती है एक्चुअली, जो हम लोग पॉइंट देखते हैं वो सन की इमेज होती है, काफ़ी डिमिनिश्ड इमेज होती है, काफ़ी छोटी इमेज होती है सन के कंपैरिजन में। वो वहाँ पे सारी इमेजेस इकट्ठी, वहाँ पे सारी रेज जो आ रही होती है इकट्ठी होती है, वही इमेज बनती है और उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। और फोकल लेंथ हर मिरर को डिफाइन करने के लिए, जैसे अलग अलग साइजेस के मिरर होते हैं अलग अलग स्फेरिकल से, तो उसकी फोकल लेंथ डिफाइन होती है, और हम अगर लेना रहता है तो बोलते हैं इस फोकल लेंथ की मिरर चाहिए हमको, स्फेरिकल मिरर चाहिए हमको इस फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। डिस्टेंस, यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में हमको उस फोकल लेंथ के बारे में पता चल जाएगा। ये जो पॉइंट पी से एफ तक की डिस्टेंस है, ये इस मिरर की जो है वो फोकल लेंथ है, पॉइंट पी से यानी पोल से एफ तक की डिस्टेंस,
यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और पॉइंट एफ पे फोकस हो रही हैं, सारी आगे पॉइंट ऑफ एफ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि जो एंगल लिया जाता है किसी भी स्फेयर का एंगल जो लिया जाता है, उसके लिए जो हम लोग जैसे इंसिडेंट एंगल कहाँ मानेंगे, कोई अगर रे गिरी तो कैसे पता चलेगा कि इंसिडेंट क्या है। प्लेन पे तो हम लोग जान गए, प्लेन जब सरफेस रहती है तो उस पर इंसिडेंट रे कहाँ से मेज़र करनी है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कहाँ से मेज़र करना है। अगर स्फेरिकल मिरर है तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सी से एक देखिए डॉटेड लाइन गई हुई है पॉइंट डी तक, फर्स्ट रे की एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करने के लिए। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को जहाँ पे रे फॉल कर रही है हम लोग मैच कर देंगे, अगर वहाँ पे इसको मिला देंगे तो वहाँ से जो एंगल आ रही है, रे आ रही है, उसके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको ज्वाइन कर देने पे हमको पता चल जाएगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। नेक्स्ट हम लोग फोकल लेंथ, जो कि फोकस और फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस है। फोकस हम लोग मिरर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। फोकस एक पॉइंट है। फोकल लेंथ क्या होती है, ये एक वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू। हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग लेंसेज का फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, और वो होती क्या है मैथमेटिकल वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। फोकस जो है कैपिटल एफ से डिफाइन हम लोग लिखते थे, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखेंगे। ये कनकेव मिरर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पे है। कॉन्वेक्स मिरर आप लोग देख सकते होंगे, एक डिफरेंस आपको यहीं से पता चल गया होगा कि कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है वो मिरर के सामने लाई कर रहा है। सामने मीन्स लेफ्ट साइड में, देखिए आप जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में पड़ रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है और फोकस, ये दोनों वो मिरर के पीछे पड़ रहे हैं। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिस साइड मिरर के ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके जस्ट अपोजिट साइड में, राइट साइड में पड़ रहे हैं। और इसी के बीच में यहाँ पे रेडियस भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब यहाँ पे सेंटर है, यही इसका रेडियस भी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है, अपर्चर। अपर्चर क्या है, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज अपर्चर। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉट द डायमीटर ऑफ स्फेयर। स्फेयर का डायमीटर नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और 10th में बोर्ड्स में आप लोगों को ये डिफिनेशंस भी पूछ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में या आगे भी। तो इन डिफिनेशंस को ध्यान से पढ़ के ऑब्जर्व करके ही आपको याद रखनी है कि डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेयर का डायमीटर कोई गलती से मत मान लेना। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर से हम लोगों का क्या मतलब है कि यहाँ से स्फेयर के इंड टू इंड हम लोग मैच करेंगे स्फेरिकल मिरर को। तो m से n के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर पॉइंट m को पॉइंट n से आप मैच कर दे रहे हैं इस डायग्राम में, तो जो वो लेंथ फाइंड आउट होगी वो उसका अपर्चर होगा मिरर का। इसको एक तरह से बेंडिंग का वो भी मान सकते हैं कि कितना बेंड हुआ है। अपर्चर बड़ा होगा तो बेंडिंग कम रहेगी, अपर्चर छोटा होगा तो बेंडिंग ज़्यादा रहेगी। उसके बाद फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में एक कॉमन सा रिलेशनशिप दिया है, रेडियस इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर लाइज बिटवीन मिडवे ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब जो प्रिंसिपल फोकस है स्फेरिकल मिरर का, फोकस आप लोगों को पता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में लाई करता है। ये बहुत कॉमन सी बात है मिरर को लेके, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आगे जब रे डायग्राम्स बनेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसको भूलना नहीं है कि जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस होता है वो प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को आप ध्यान से पढ़िए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस
लिंक को देखिएगा, एक्टिविटी को पढ़िए और ट्राई करिए। अगर पॉसिबल है तो अपने घर पे उसको ट्राई करिए। साथ ही एक टेबल दिया हुआ है, उसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग ये टेबल है, जिसमें आपको अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट्स को रखने को बोला है कि आप वो सेटअप क्रिएट करिए मिरर का और स्क्रीन का, और अलग अलग पोजीशन पे, जैसे इन्फिनिटी पे, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ पे और बिटवीन पी एंड एफ, उन पोजीशंस को रखिए और ऑब्ज़र्व करिए। क्या क्या ऑब्ज़र्व करना है हमको? पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है और देखना है क्या जैसा लिखा है वैसा ही आ रहा है। आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करिए और उस लिंक में उस वीडियो को भी देखिए, आपको आइडिया मिलेगा। एक वर्ड मैंने इन्फिनिटी यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर रखा है। इन्फिनिटी का गलत आइडिया कई स्टूडेंट्स को होता है कि इन्फिनिटी मीन्स क्या, इन्फिनिटी पे कैसे रख दें हम किसी ऑब्जेक्ट को। इन्फिनिटी का सीधा सा यहाँ पे आप मतलब समझिए कि जो आपने स्फेरिकल मिरर लिया है उसका जो सेंटर है, मतलब उसका जो रेडियस है या फिर उसका जो डायमीटर है, उसके कंपैरिजन में आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा दूर पे रखेंगे। मतलब अगर मान लीजिए उस मिरर का जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है, 0.567 सेंटीमीटर है, तो आप उसके हिसाब से उसको 10 मीटर पे रख दीजिए, ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पे रख दीजिए। ऐसे करके ऑब्जेक्ट को रखिए और तब जो रे आ रही है उसको, ऐसा करने के लिए आपको एक डार्क रूम में या कम लाइट वाले रूम में, ऐसे आप ओपन स्पेस में इन सब प्रैक्टिकल्स को नहीं कर सकते। आप करिए उसको और देखिए क्या आता है। उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम वगैरह के बारे में जानेंगे, कैसे क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ होते हैं। आप इन प्रैक्टिकल्स को करिए। थैंक यू।